about the internship topic. कोई बोलता है कि 6+1 है, कोई बोल रहा है कि 6 साल में इंक्लूडेड है, क्या सही है क्या गलत है? Hey, that's Khushi. Welcome back to my YouTube channel. To someone who don't know me, which obviously you won't because I'm not famous yet. But I will be someday, you bitches. so yeah, hi. My name is Khushi Singh. I'm 4th year MBBS student in Georgia. I shot the whole video एक बार, but फिर मुझे realize हुआ कि मैं तो recording चालू करना भूल गई. So here I am recording it all over again. As I told you in my previous video that I'll be answering most asked questions. So here I am with yet another video. Consistent or what? Let's hope that I stay consistent this time and Do not leave it in the middle. so without any further ado, let's get into the video. So very first question is Georgia का total MBBS degree including internship लेके कितने साल का? There are so many questions about the internship topic. कोई बोलता है कि 6+1 है, कोई बोल रहा है कि 6 साल में included है. क्या सही है, क्या गलत? There is so much fuss about it. I saw the draft and this is final. जॉर्जिया में इंटर्नशिप इज इंक्लूडेड इन द 6-year कोर्स, तो 6 साल में ही आपका इंटर्नशिप इंक्लूडेड है. ओके, यू डू नॉट नीड टू आस्क एनीवन एल्स, यू डू नॉट नीड टू सी एनी अदर वीडियो अबाउट इट. दिस इज फाइनल. ओके, ऐसा है तो आई विल मेंशन द ड्राफ्ट इन द डिस्क्रिप्शन, सो गो चेक दैट आउट अगर तुमको कोई भी डाउट है, बिकॉज दैट्स द फाइनल ड्राफ्ट, ऑफिशियल ड्राफ्ट, जिसमें ये मेंशन है कि जॉर्जिया का जो इंटर्नशिप है दैट इज इंक्लूडेड इन द 6-year कोर्स. That's that. Second question is, do Georgia University provide cadaver for practice? Please reply. No. See, people here are kind of orthodox, so they do not let anybody perform things on their body. They do not provide cadaver, but they provide dummies. Okay, they have good dummies. You can practice on that, which every one of us do. So yeah, there is no proper cadaver, but there are dummies as a replacement. Is internship paid or not? No, the internship is not paid. It's not at all paid. Make the video on expenses and flat rent. So about the expenses मैंने वीडियो बना दी है. Okay, मैं उसको लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आई बटन में, तो वो जाके देख लेना. एंड अबाउट द फ्लैट रेंट, तो वही है कि फ्लैट रेंट तो डिपेंड्स ऑन द सिटी. जैसे कुतैसी में जो फ्लैट्स है वो कंपेयर टू बातूमी और तिबलिसी चीपर है. तिबलिसी में जो फ्लैट्स है वो डॉलर के हिसाब से मिलते हैं, बातूमी में जो फ्लैट्स है वो डॉलर के हिसाब से मिलता है, बट कुतैसी में जो फ्लैट्स है वो जेल के हिसाब से मिलते हैं. तो कंपैरिजन टू तिबलिसी एंड बातूमी, कुतैसी इज चीपर. बातूमी में फ्लैट्स की प्राइसेस समर के टाइम पे बहुत ज्यादा होती है. तिबलिसी में तो बिकॉज इट्स मेट्रो सिटी, बिकॉज इट्स द कैपिटल सिटी, तो वहां पे it's very expensive. There are certain areas जहाँ पे तो बहुत ज्यादा expensive है. तो and because I don't live in Tbilisi, so I cannot tell much about it, but I know it's very expensive. Let's move on to the next question. Is Akaki really best and good university to consider? I mean, is the Akaki University good for Indian student in terms of academics? I am in the process of admission for ITSU, so please can you give your suggestion and advice? Academics is okayish. It's not that great, it's not that bad, it's somewhere in the middle. Again, it boils down to how much effort you put in. It's literally that. I won't say it's best, or feel like it's a very subjective term. किसी के लिए कुछ best, किसी के लिए कुछ नहीं. I can tell one thing, that if you have any sort of like budget issue or financial issue, then you can consider Akaki. Because one, the city is cheaper compared to Tbilisi and Batumi. फीस उतनी है, फीस का ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं. पढ़ाई तो खुद ही करनी पड़ेगी. यूनिवर्सिटी का एक रोल थोड़ा बहुत है, बट मेजरली तो अगर तुमको FMG या MCI जो भी नेक्स्ट एग्जाम है वो क्रैक करनी है, तो इट्स हाउ मच एफर्ट यू पुट इन, दैट काउंट्स, दैट मैटर्स, दैट्स दैट. Okay, should I consider coming to Georgia for MBBS? Is it worth it? Is the education and the practicals good? Practicals जो है यहाँ पे वाइवा होता है, क्लिनिकल रोटेशंस होते हैं. सारी यूनिवर्सिटीज का यार अलग अलग है, किसी में क्लिनिकल रोटेशन ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं. एक टीचर पे डिपेंड करता है कि वो टीचर कैसा है, वो आपको क्लिनिकली ढंग से, क्योंकि हमारे कुछ टीचर्स हैं जो काफी अच्छा पढ़ाते हैं. मेक श्योर वी सी द सर्जरीज एंड वी अंडरस्टैंड इट. एंड कुछ है, दे आर लाइक लीस्ट बॉदर्ड. सो इज देयर अ डेली टेस्ट लाइक शेड्यूल फॉलोड एट द यूनिवर्सिटी? वो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है सर. कुछ यूनिवर्सिटीज है जिनमें डेली टेस्ट होता है, कुछ में नहीं होता है. कुछ हमारी यूनिवर्सिटी है, वी हैव क्विजेज, we have midterms, we have finals and all that, but we don't have a daily quiz. The question is, you are in which college of Georgia? I am in ATSU, Akaki Sayyid Ali State University. This college is in Kutaisi, Georgia. So if anyone is getting medical degree from Georgia, is it necessary to do internship in India? Again, please reply. Yes, it is mandatory to do internship in whichever country you go to. अगर आप जॉर्जिया से कोई भी कंट्री जा रहे हो, US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, कोई भी कंट्री जा रहे हो, तो उस कंट्री में जाओगे, तुम उस कंट्री के एग्जाम क्लियर करोगे, वहां पे इंटर्नशिप करोगे, उसके बाद ही तुम्हें लाइसेंस दिया जाएगा. Somebody has any query regarding that, तो मैं क्लियर कर देती हूँ.
अगर आप जॉर्जिया से इंडिया जा रहे हो, आप कोई भी कंट्री में, वहां से आप इंडिया जा रहे हो, तो आपको अपनी जो भी आप कंट्री में वहां का पूरा कोर्स करना है। अगर आपका 5 साल का एमबीबीएस तो आप 5 साल तो करोगे, आपका 6 साल का है और उसमें अगर इंटर्नशिप इंक्लूड है तो वो करके फिर आप इंडिया जाओगे। वहां इंडिया में जाके भी ऑब्वियसली यू हैव टू गिव एग्जाम। अगर एफएमजी है तो एफएमजी देंगे, बट अगर नेक्स्ट है तो नेक्स्ट 1 देंगे, फिर उसके बाद इंटर्नशिप होगी, फिर नेक्स्ट 2 देंगे। तो नेक्स्ट 1 जो है उसके हिसाब से रैंकिंग होगी। नेक्स्ट 1 में पूरा प्रॉपर रैंक आएगा, मार्क्स आएगा। नेक्स्ट 2 जो है पीजी की एग्जाम है, वो क्लियर होने के बाद आपको पीजी की सीट मिलेगी और सब कुछ होगा। तो नेक्स्ट 1 जो है इसके हिसाब से आपकी रैंकिंग आएगी पीजी में। नेक्स्ट 2 है उसमें बस पास और फेल आएगा। ओके, देयर इज दिस क्वेश्चन, कितने % स्टूडेंट पास कर पाते हैं वहां का? आई मीन बैक कितने % का लगता है? क्या बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है पास होने के लिए? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे डेली मैरो से 4 से 5 घंटे पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। सी अगेन इट बॉइल्स डाउन टू हाउ मच एफर्ट यू पुट इन। ठीक है, अगर यू वांट 4 से 5 घंटे पढ़ने के लिए तो ये तो तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा ना। और जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज है जिसमें ना बहुत हेक्टिक स्केड्यूल होता है कि बहुत ज्यादा क्लासेस लगती है और बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो उस पॉइंट पे यार तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा। और पासिंग परसेंटेज जैसे मेरे कॉलेज का मैं बता सकती हूँ, पहले इट वाज 50%, अब इट्स 63 समथिंग %। तो या बट फिर वही है कि यू जस्ट पुट इन लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट एंड यू कैन क्रैक इट। इट्स नॉट समथिंग दैट इज अनडन और अनडूएबल। So yeah, it's more how much effort you put in. Is Georgia safe after Ukraine war? Well, there are so many immigrants from Russia. There are so many immigrants from Ukraine. But ऐसे कोई war वाला सीन नहीं है. And then the other question is any language problem, ma'am? Well, yeah, when you'll come for the first time, the language is not that easy. So when you'll come for the first time, it is kind of तुम्हें थोड़ा problem होगा. But you know, some basic language सीख लोगे, कुछ words सीख लोगे तो it's manageable, it's doable thing. So don't worry about that. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में क्लासेस लगती है, हमारी यूनिवर्सिटीज में भी क्लासेस लगती है जॉर्जियन लैंग्वेज की, तो तुम्हें उतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं। इसे अगर जॉर्जियन तुम 10-20% भी सीख जाओगे ना तो तुम्हारा काम चल जाएगा। इज वेदर अ प्रॉब्लम इन जॉर्जिया एंड इज इट सेम एज इंडिया? नो, इट्स नॉट सेम एज इंडिया, इट्स वेरी डिफरेंट। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, एक आध हफ्ते लगेगा एडजस्ट होने में, बट देन यू विल बी गुड टू गो। कि उतना ज्यादा कुछ इशू होता नहीं, उतना ज्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है। बिकॉज ठंड होगी तो यू हैव हीटर एंड ऑल, और गर्मी होगी तो यू हैव एसी एंड फैन एंड ऑल, तो it's manageable. It's not something that is big problem. Georgia is Europe or not? Georgia is basically situated in the middle of Asia and Europe. Earlier Georgia was not a part of European Union, but 2022 में Georgia applied for it and now it's a part of European Union. So yeah. That was all the questions that we had for today. I hope it made sense. I hope I answered most of your questions. If I missed something, which I might have, तो प्लीज तुम लोग कमेंट सेक्शन में वापस से लिख देना। मैं पक्का यू नो आई लुक इनटू दैट। एंड इफ यू आर समवन हु स्टडीज हियर एंड थिंक दैट आई माइट हैव मिस्ड सम एडवाइसेस which I did not include in any of my videos, या कोई हैक्स या कोई भी ट्रिक्स या कुछ भी तुम चाहते हो कि वो वीडियो में आना चाहिए, ये पता होना चाहिए लोगों को, तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना। आई पक्का यूज दैट, आई फीचर दैट कमेंट इन माय वीडियो कि यू नो व्हाट दिस पर्सन थिंक्स दैट दिस शुड बी नोन एंड इट्स सो ट्रू एंड आई मिस्ड इट। सो या आई owe up to that, don't worry. I hope this helped. I hope I made sense. Okay. ये वीडियो के पहले I'll tell you, okay, ये वीडियो के पहले मुझे इतना भयंकर वाला सेल्फ डाउट हो रहा था बिकॉज there were certain things जो मुझे नहीं पता थे and I was like कि यार मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे पता होना चाहिए, मुझे क्यों नहीं पता है। and फिर I was like ठीक है, it's okay to not know certain things. ठीक है, so if you're someone who is having self doubt, भी बिना मतलब का ज्ञान है, but if you are someone who is having self doubt तो it's okay. Self doubt is the part of the process. Yeah, यही मैं अपने आप को बोल रही हूँ कि it's okay to not know certain things. It's okay to learn on the way, and yeah, that's that. So yeah, I'll see you in my next video. Till then, wishing you can eat 50,000 calories a day and not get a pound. Peace. Bye.